Hi, in this video, we will be analyzing the constitutional law questions of CLAT PG 2025 question paper. So, there were 20 questions from constitutional law in the CLAT PG 2025 examination. Out of the 20 questions, they were divided into 4 reading comprehensions. So, in this video, we will be dealing with the first reading comprehension and hence the 5 first questions of constitutional law that were given in CLAT PG 2025 examination. Now, the question number that I am using is from set A. So, you can use any question paper that you have and find the corresponding number of that section. As you can see, the first question deals with the pardoning power of the president. Now, having a quick reading of the reading comprehension that is given, you can easily find out that this comprehension deals with the pardoning power of the president, and it deals with Article 72, which is the pardoning power of the president, Article 74, which is the president acting on the advice of the Council of Ministers. So these are the things which are mentioned in this paragraph, Article 74 of the Constitution, that deals with the advice of the Council of Ministers. Now we would be looking at from where this comprehension has been taken. So as you can see, this comprehension has been taken from the judgment of Shatrughan Chauhan versus Union of India, which is a landmark judgment of mercy petition. This judgment is of 2014, and if we briefly look at the fact of the judgment, then this judgment dealt with the death row convict who had applied for mercy petition, and there was an inordinate delay in the mercy petition. So the question before the court was whether the inordinate delay would be a ground for commutation of a death sentence, as it causes mental agony and violates Article 21. So court had decided in this case that yes, it is a ground. They also mentioned that there should be at least 14 days for after the communication of the mercy petition to the convict, so that the execution process is not done hastily and the convict has the option to resort to other options that are available to him, such as procedural irregularities and other factors, ताकि जो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है वो हेस्टली कंडक्ट ना हो. साथ ही साथ उसमें यह भी बोला गया कि इनऑर्डिनेट डिले को स्पेसिफाई नहीं किया गया, पर 2 से 5 साल तक का डिले को भी इनऑर्डिनेट डिले माना जा सकता है, ऐसा कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था. तो ये एक लैंडमार्क केस है, क्योंकि इस केस के बाद बहुत सारे डेथ सेंटेंसेस लाइफ सेंटेंस पे कम्यूट हो गए थे ड्यू टू इनऑर्डिनेट डिले. देवर डिलेज ऑफ अबाउट 10 years और 5 years जिसमें मर्सी पिटिशन पेंडिंग थी बिफोर द प्रेसिडेंट. सो इट वॉज अ लैंडमार्क केस ऑफ शत्रुघ्न चौहान रिलेटिंग टू इनऑर्डिनेट डिले इन मर्सी पिटिशन. नाउ आर्टिकल 72 का वर्बेटम कोई भी टाइम स्पेसिफाई नहीं करता है, पर कोर्ट ने कहा क्योंकि ये एक तरीका डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट का, सो देयर शुडेंट बी एनी इनऑर्डिनेट डिले एज इट वायलेट्स आर्टिकल 21 और मेंटल एगनी कॉज करता है हमारे कॉन्विक्ट्स के साथ. और कॉन्विक्ट लोगों का भी राइट होता है, राइट टू लाइफ होता है, इवन दो दे आर कॉन्विक्ट्स बट दे स्टिल हैव राइट टू लाइफ अवेलेबल टू देम. तो आप अगर पैराग्राफ को ब्रिस्ली रीड करेंगे तो आपको यही सारी डिटेल्स मिलेंगी. इवन दो अगर आप एकदम डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको आर्टिकल अगर एक बार रीड किया होगा तो वो दिमाग में आ जाएगा. सो द फर्स्ट क्वेश्चन डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्रांटिंग ऑफ पार्डन बाय द प्रेसिडेंट. तो आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं. पहला ऑप्शन है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है ग्रांट करना, इसलिए जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल है. सेकंड चीज़ कह रहा है कि ये प्रिविलेज है प्रेसिडेंट का, इसलिए जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल नहीं है. इज अवेलेबल अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट इन ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग. अच्छा, क्योंकि ये एक ग्रांटिंग पार्डन बिंग द प्रिविलेज, जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल नहीं है. फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सप्रेसली कन्फर्ड द पावर टू ग्रांट प्रेसिडेंट, हेंस द प्रेसिडेंट इज नॉट bound to rely on the aid of the executive. और चौथा, president power to grant pardons can be reviewed on the grounds of non application of mind. Now अब इन सब को हम लोग अगर एनालिसिस करें तो सबसे पहले हमको आर्टिकल 72 देखना चाहिए, जो कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स है.
इसमें ये क्लियरली दिया गया है कि पहली बात, ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट का, और ये कम्यूटेशन, रेमिशन और पार्डन में अप्लाई हो सकता है, और ये डेथ पेनल्टी में भी हो सकता है, यानी यूनियन लॉ के अगेंस्ट जो क्राइम्स और ऑफेंसेस है उसमें अप्लाई हो सकता है। नो, आर्टिकल 74 ये कहता है कि उनको रिलाई करना है, इवन तो उनको उसमें जजमेंट नहीं करना, बट ही हैज़ टू सीक द ओपिनियन ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स। तो अगर आप देखोगे कि पहला ऑप्शन जो कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, तो ये गलत हो जाता है क्योंकि ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है एग्जीक्यूटिव का। सेकेंड थिंग जो कह रहा है प्रिविलेज ऑफ द प्रेसिडेंट है, नो जुडिशियल रिव्यू, तो ये बात गलत है क्योंकि जुडिशियल रिव्यू अलाउड होता है। आर्टिकल 72 में ये बात मेंशन नहीं है, बट अगर आर्टिकल 72 के वर्बेटम में ये बात मेंशन नहीं है, बट आप अगर प्रेसिडेंट्स देखेंगे तो ये एक डेवलप हुआ है जहाँ ये कहा गया है कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है 3 ग्राउंड्स में: नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, आर्बिट्रेरीनेस और एक्सीड यूज़ और मेलाफाइड यूज़ ऑफ पावर्स। ये बात कही थी मरूराम के केस में। तो इस ग्राउंड पे एग्जीक्यूटिव का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तीसरा कहा गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सप्रेसली प्रेसिडेंट को दिया है, इसलिए वो एड पे रिलाई नहीं करेंगे, तो आर्टिकल 74 कहता है कि उनको रिलाई करना है एडवाइस पे। और फोर्थ कहता है कैन ग्रांट पावर कैन बी रिव्यूड ऑन ग्राउंड्स ऑफ नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, जो कि है राइट आंसर। नाउ अगर आप आर्टिकल 72 का वर्बेटम देखेंगे, आर्टिकल 161 सेम पावर गवर्नर को देती है स्टेट लेवल की लॉस के लिए, जो आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को देती है। नो, द पॉइंट इज जो गवर्नर के पास पावर्स हैं वो स्टेट लेवल के लॉस के लिए हैं, वो यूनियन लॉस के लिए नहीं है। और उसके बाद जो मैंने अभी मेंशन किया था कि 3 ग्राउंड पे चैलेंज किया जा सकता है, जो कि नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, आर्बिट्रेरीनेस और मालाफाइड एक्सरसाइज ऑफ पावर है, जो कि मरूराम के केस में मेंशन किया गया था और जो कि री इन्फोर्स किया गया था शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। तो हेंस जो ऑप्शन डी था हमारा वही राइट आंसर था, क्योंकि उसको जुडिशियल रिव्यू हो सकता है नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड में। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, जो कि है इन द अबव केस, जो कि शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, उसमें मिनिमम पीरियड ऑफ डैश डे इज स्टिपुलेटेड बिटवीन द रिसिप्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ रिजेक्शन ऑफ मर्सी पिटीशन इन द शेड्यूल डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। तो जैसे कि मैंने बताया 14 डेज होना चाहिए। द रीजनिंग बिहाइंड कि एक हेस्टी एग्जीक्यूशन ना हो और एग्जीक्यूशन प्रोसेस एक प्रोसीजरल वे में हो और कॉन्विक्ट को एक पूरा चांस मिले बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने का। व्हाट इज़ नॉट true about Article 21 of the Constitution? Insanity is not a supervening factor. Right to life continues till the last breath. Anguish between altering hopes and all violates Article 21 of the prisoners, and Article 21 is a substantive right, not a mere procedural right. तो अगर आप देखोगे तो एक रीडिंग पे बी, सी और डी ऑप्शन ट्रू है, यानी लास्ट ब्रेथ तक कंटिन्यू करता है, ये बात हमें पता है। एंगिश जो है वो वॉलेट करती है आर्टिकल 21 को, ये शत्रुघ्न चौहान की केस में क्लियर किया गया है। और आर्टिकल 21 एक सब्सटेंटिव राइट है, कोई प्रोसीजरल राइट नहीं है, यानी इनसैनिटी ही रेलेवेंट फैक्टर है कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस में। ये शत्रुघ्न चौहान के केस में भी बोला गया था कि अगर मेंटली इलनेस को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इनसैनिटी भी कंसिडर होगी कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस के लिए। इवन अवॉर्डिंग ऑफ डेथ सेंटेंस में भी ये चीज़ अगर फैक्टर है तो कम्यूटेशन के लिए भी ये चीज़ फैक्टर होगी। क्वेश्चन नंबर 44 या फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन आज का है कि इन विच केस कोर्ट हेल्ड दैट द क्राइम इज अ ब्रूटल एंड हीनियस involves killing of large number of innocent people without any reason. Delay cannot be the sole factor for commutation of death sentence to life imprisonment. ये किस केस में ये बात कही गई थी? अब ऑप्शन दिया है देवेंद्र पाल सिंह भूलर का केस, वी श्रीहरन मुर्गन का केस, याकूब अब्दुल रजाक मेनन का केस और शत्रुघ्न चौहान का केस। अब इसमें जो की फैक्टर है वो है अ लार्ज नंबर किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल। अब इस पे कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है? जेनोसाइड, टेररिज्म, बॉम्बिंग, आगजनी और मास शूटिंग, मास मर्डर, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लार्ज नंबर ऑफ इनोसेंट पीपल यानी एक क्राइम अगेंस्ट ग्रुप ऑफ पीपल को आप इनोसेंट पीपल विदाउट एनी रीज़न में आप कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ डेथ टोल हुई थी। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है देवेंद्र पाल सिंह भूलर का केस है, वी श्रीहरन मुर्गन का केस है, याकूब अब्दुल रजाक मेनन का केस है और शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। नाउ शत्रुघ्न चौहान के फैक्ट्स तो हमको ऑलरेडी पता है, जो इनऑर्डिनेट डिले से रिलेटेड केस था।
देवेंद्र पाल सिंह का केस जो है वो है दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट से रिलेटेड केस, जो 1993 में दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उससे रिलेटेड केस है। जो वी श्रीहरन मुरुगन का केस है वो असासिनेशन ऑफ राजीव गांधी राजीव गांधी के जो कॉन्विक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड केस है। और ये केस में पर्टिकुलरली स्टेट वर्सेस यूनियन पावर्स के बारे में जिक्र हुआ था, रेमिशन से रिलेटेड केस है। इसमें लार्ज नंबर ऑफ इनोसेंट किलिंग नहीं हुई थी। याकूब अब्दुल रज़ाक मेनन का जो केस है वो 1993 बॉम्बे ब्लास्ट से रिलेटेड केस है। इसमें बच्चन सिंह के केस में जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन हुआ था उसको रीअफर्म किया गया था और इसमें भी मर्सी पिटिशन डिनाई हुई थी। तो आप जान सकते हैं कि देवेंद्र पाल सिंह और याकूब अब्दुल रज़ाक का केस जो है वो लार्ज नंबर ऑफ किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल से रिलेटेड है, यानी बॉम्बिंग से रिलेटेड है। अब देवेंद्र पाल के केस में क्या हुआ था कि 2 ग्राउंड्स लिए गए थे, एक मेंटल इलनेस और दूसरा डिले। दोनों केस में डिले हुआ था मर्सी पिटिशन में, बट एक में मेंटल इलनेस का फैक्टर भी था। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि मेंटल इलनेस जो है वो ट्रीटेबल है, क्यूरेबल जो मेंटल इलनेस है। हेंस ये इस केस में उनका उनका जो मर्सी पिटिशन था जो कम्यूटेशन के लिए वो रिजेक्ट हुई थी और उसका लाइफ कम्यूटेशन के लिए जो उन्होंने अपील की थी वो भी रिजेक्ट हुई थी। बट इसमें 2 ग्राउंड्स थे। बट याकूब मेनन रज़ा के केस में केवल एक ही ग्राउंड था जो कि था डिले, 10 साल का डिले पिटिशन में, मर्सी पिटिशन में। तो उसमें कहा गया कि सिर्फ डिले ही सोल ग्राउंड नहीं होगा, क्योंकि एक डिटरेंस फैक्टर होता है। एक बहुत बड़ा क्राइम है जिसमें एक बहुत बड़े क्राइम का कॉन्विक्ट है, तो सिर्फ डिले ही एक ऐसा फैक्टर नहीं होगा जिस वजह से आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट करेंगे। तो जो जजेस का जो जजमेंट था उसमें उनका जो कम्यूटेशन के लिए जो था केस था उसको ऑब्वियसली रिजेक्ट किया गया, साथ ही डेथ सेंटेंस को अपहेल्ड किया गया और इसमें रेयरेस्ट ऑफ डेयर डॉक्ट्रिन जो था उसको भी रीअफर्म किया गया। तो इस केस का सही आंसर होगा याकूब अब्दुल रज़ाक मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नाउ मुरुगन वाले केस का एक और फैक्टर ये था स्टेट वर्सेस यूनियन फैक्टर, तो जिसमें ये कहा गया कि रेमिशन की पावर जो स्टेट की है वो सब्जेक्ट टू यूनियन की जो पावर है उसमें होगा। तमिलनाडु गवर्नमेंट चाह रही थी रेमिशन करना मुरुगन का इस केस में, पर कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि नहीं, उसका जुडिशियल रिव्यू होगा उनके रेमिशन के पावर्स का, क्योंकि ये स्टेट लॉ के ऊपर नहीं, जबकि यूनियन ऑफेंस था। एक मर्डर हुआ था प्राइम मिनिस्टर का, तो ये एक यूनियन लॉ का ऑफेंस था। और दूसरी चीज़, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शुड बी द वन डिसाइडिंग इट। तमिलनाडु में केस नहीं चल रहा था, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी जहाँ पर ट्रायल कंडक्ट हुआ उस गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट माना गया। इसलिए मुरुगन का केस इससे मास किलिंग से रिलेटेड नहीं है, इनोसेंट किलिंग से रिलेटेड नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, जो कि प्रेसिडेंट्स पावर टू ग्रांट अ पार्डन है। तो इसमें आप देखोगे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कैन बी डेलीगेटेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि गलत है आर्टिकल 74 की रीडिंग में। सेकंड, कैन नॉट बी डेलीगेटेड एज इट इज़ एन एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन, जो कि नहीं, एक डिस्क्रिशनरी पावर है एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेटिव फंक्शन बिल्कुल नहीं है। Can be delegated as it is expressly conferred on the president. Yes, it is expressly conferred on the president and only president, यानी ये वाइस प्रेसिडेंट को डेलीगेट नहीं किया जा सकता। तो ये ऑप्शन डी भी गलत है एंड ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सो हेंस हमने 5 क्वेश्चंस डील किए आर्टिकल हमने 5 क्वेश्चंस डील किए जो कि क्लैट पीजी के एग्जाम्स में पूछे गए थे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से। ऐसे ही हम बाकी के 3 कॉम्प्रीहेंशन को भी डील करेंगे आने वाले वीडियोस में। लेट मी नो अगर आपके पास कोई सजेशन है मेरे लिए, और वी वुड जस्ट एनालाइज ऑल द क्वेश्चंस इन डिटेल, ताकि हमको उसके पीछे का जो जूरिस्प्रूडेंस है वो भी समझ में आ जाए कि क्या रीजनिंग थी उन क्वेश्चन के पीछे और क्यों बाकी क्वेश्चंस जो ऑप्शंस दिए गए थे वो भी रिलेटेड थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन।